Good evening, guys. Hello, everyone. Sometimes you do not need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let's go, and see what's happened. Today, we will study chapter 3 Human Reproduction and second chapter I have already uploaded. You can see on this channel Biology Star Study Point second chapter, that is sexual reproduction flowering plants, that I have already uploaded on this channel. You can see. I would like to say one thing, that if you like this video, so please like, share this video and subscribe my channel. It encourage me. आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग, दैट कि पहले मैं इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, फिर नोट्स के थ्रू टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. Chapter 3 Human Reproduction. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. Viviparous means giving birth to a child. The reproductive events in human include formation of gametes, means gametogenesis, that is sperm in males and ovum in females. Sperms males में बनते हैं और ovum females में बनते हैं. Transfer of sperm into female, genital tract insemination and fusion of male and female gametes, fertilization. जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा जब मीट करते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और फिर बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है. दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड दिस अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल. बाद में वो यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जेस्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज पार्चुरेशन. डिलीवरी हो जाती है बेबी को, इसको पार्चुरेशन बोलते हैं. और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब बेबी का डेवलपमेंट चल रहा होता है, उसको जेस्टेशन प्रोसेस बोलते हैं. There are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. मतलब ओवम का बनना फीमेल्स में 50 to 45 की एज में बंद हो जाता है और इसकी प्यूबर्टी 12 to 13 एज में अटेन हो जाती है गर्ल्स की. Let us examine the male and female reproductive system in human. The male reproductive system The male reproductive system is located in the pelvis region. मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस मतलब नीचे के हिस्से में लोकेटेड होता है. इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory duct, glands and the external genitalia. Testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. टेस्टिस का स्ट्रक्चर है ये बाहर, बॉडी के बाहर प्रोट्रूटेड रहता है, क्योंकि इस स्क्रोटम में टेस्टिस पाउच के फॉर्म में लोकेटेड होती हैं नीचे की तरफ, और इनका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसलिए ये बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर की तरफ प्रोट्रूटेड रहती हैं. द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर of the testes 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि इंटरनल बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके लिए फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. इसलिए ये बॉडी के बाहर ये स्क्रोटम पाउच
प्रोट्रूटेड रहता है. Necessary for the spermatogenesis, formation of sperm. In adults, each testis is oval in shape. Adults में each testis oval shape की होती है. Within a length of about 4 to 5 centimeter and width is 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering. और जो testis है वो बहुत ही dense covering से covered होती है skin के through. Each testis has about 250 compartment और testis में 250 compartments होते हैं called testicular lobule. Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. जिसमें sperm produce होते हैं. Each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cells called male germ cell, that is spermatogonia, and Sertoli cell. The male germ cell undergo meiotic division, finally leading to sperm formation, while Sertoli cell provide nutrition to the germ cell. The regions outside the seminiferous tubule, called interstitial space, contain small blood vessels and interstitial cells और लेडिक सेल. इंटरस्टिशियल सेल्स को ही लेडिक सेल्स बोलते हैं और सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को. लेडिक सेल सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन. लेडिक सेल सिंथेसिस सीक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को कॉल्ड एंड्रोजन. लेडिक सेल्स रिलीज करते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स को. अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर आल्सो present. Male sex accessory duct include retitestis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. The seminiferous tubules of the testes open into the vasa efferentia through the retitestis. The efferentia leave the testes and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis leads to vasa deferens. Epididymis leads to vasa deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperm from the testes to the outside through the urethra. The urethra originates from the urinary bladder. Urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to the external opening, that is urethral meatus. ये डायग्राम है. डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू द मेल pelvis showing reproductive system and ये part of testes is opening shows inner details is part. Chapter 3 Human Reproduction. First we will study male reproductive system. Topic 1. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला टॉपिक आता है टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर आता है स्क्रॉटम, सेवन मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्टिस डिसेंड कर जाती हैं स्क्रॉटम में. टेस्टिस डिसेंड into this
स्क्रॉटम। और अगर वो डिसेंड नहीं करती है तो इसको एक बीमारी हो जाती है, बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। और इंटेस्टिस से स्पर्म रिलीज होते हैं और इससे एक हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन स्टेरोन टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्म को जिंदा रखने के लिए जो टेम्परेचर ज़रूरी होता है वो होता है 2 डिग्री टू 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीडेड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर ज़रूरी होता है। और एक अगर डिसेंड नहीं करती है टेस्टिस तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म एक बीमारी हो जाती है। टेस्टिस do not descend do not descend do not descend in scrotum, scrotum scrotum। और अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं करेगी तो स्पर्म बनेगा या नहीं, तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। स्पर्म बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो नहीं बनेंगे। नो स्पर्म फॉर्मेशन सॉरी नो स्पर्म प्रोडक्शन because of hyperthermia because of hyperthermia। तो टॉपिक आपने देख लिया, टेस्टिस स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में डिसेंड कर जाती है। और किस में डिसेंड करती है? स्क्रॉटम में डिसेंड करती है टेस्टिस। और टेस्टिस से क्या निकलता है? स्पर्म निकलते हैं और वो हार्मोन रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस नीडेड फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म को बनने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, इसलिए वो बॉडी के बाहर स्क्रॉटल सैक में टेस्टिस डिसेंड कर जाती हैं। और अगर वो डिसेंड नहीं करती हैं तो उनको बीमारी हो जाती है क्रिप्टोकाइज्म। टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इन स्क्रॉटल सैक में। और फिर स्पर्म बने, अगर डिसेंड नहीं करेगी तो स्पर्म बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। नो स्पर्म प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ हाइपरथर्मिया, क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है और उस पर स्पर्म जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए बॉडी के बाहर ही डिसेंड करती है टेस्टिस, बॉडी के अंदर नहीं रहती। अगर बॉडी के अंदर रहे तो क्रिप्टोकाइडिज्म में बीमारी हो जाएगी। इसका मतलब है टेस्टिस डिसेंड नहीं करी स्क्रॉटल सैक में। ऑर्किडेक्टोमी 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 मीन्स रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ऑर्किडेक्टोमी मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस को रिमूव कर देना, इसको ऑर्किडेक्टोमी बोलते हैं। और किसको रिमूव? और टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जहां पर हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जहां हमारे गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, वहां को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं।
सेक्स ऑर्गन में प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन that is testosterone, testo S-T-E-R-O-N-E, testosterone. Testes, full information is completed. Now second part is scrotum. अब हम scrotum के बारे में स्टडी करेंगे. स्क्रोटम बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. स्क्रोटम इज बैग लाइक स्ट्रक्चर. टीचर हमें कितना भी पढ़ा दे, जब तक हम खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद से नहीं लिखेंगे, जब तक लर्न होता ही नहीं है. आप चाहे कितने भी टीचर से पढ़ लीजिए, कहीं पर भी चले जाइए. ग्यूबरनैकुलम फाइब्रस कॉर्ड होती है. टेस्टिस और स्क्रोटम को अटैच करके रखता है. लाइक ये टेस्टिस है, स्क्रोटल है, और इसमें जो टेस्टिस है ये प्रेजेंट है. ये टेस्टिस को जो यहाँ पे फिक्स करके रखता है, अटैच करके रखता है, इसको बोलते हैं ग्यूबरनैकुलम, और ये फाइब्रस कॉर्ड होती है. द मेल एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड. अब हम मेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. द मेल मेल एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड. फर्स्ट, पहला होता है टेस्टिस. मेल एक्सेसरी डक्ट, फर्स्ट टेस्टिस, सेकंड इज रेटी टेस्टिस, थर्ड इज वासा एफ्रेंशिया, फोर्थ इज एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट होते हैं. कैप्यूट, कार्पस, कॉडा. कैप्यूट मतलब कैप, कैप मतलब हेड वाला पार्ट होता है, ये बॉडी होती है, ये एंड पार्ट होता है एपिडिडाइमिस का. फिफ्थ इज वासा डिफरेंस, difference. Sixth is ejaculatory duct. Seventh is urethra.
यूरेथ्रा के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ग्लैंड्यूलर, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल। ग्लैंडुलर, membranous, penile. Eighth is urethral meatus. टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, फिर वो रेटी टेस्टिस में जाते हैं, फिर वासा एफरेंशिया में जाते हैं, फिर एपिडिडाइमिस में, फिर कैप्यूट, कॉर्पस और कॉडा एंड ये 3 पार्ट्स हैं एपिडिडाइमिस के। फिर वास डिफरेंस में, इजैकुलेटरी डक्ट में, यूरेथ्रा, फिर ग्लैंडुलर, नॉन membranous, penile and then eject from the urethral meatus. टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फिर रेटी टेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है एपिडिडाइमिस। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म भी यही होता है, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी भी यही बनती है स्पर्म की। वासा डिफरेंस, स्टोरेज ऑफ स्पर्म 3 मंथ्स तक स्टोर रहते हैं स्पर्म। इजैकुलेटरी डक्ट पेयर्ड होती है, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल यहीं पर होता है। थर्ड इज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा अनपेयर्ड होता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट होती है। स्पर्म किस किस प्रोडक्शन, किस का सीक्रीशन इंक्लूड होता है स्पर्म के अंदर? स्पर्म प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का, सेमाइनल वेसिकल का, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। इस पूरे को कंसिस्ट कहते हैं सीमेन। ये सीमेन के अंदर ये सब प्रेजेंट होता है, स्पर्म, प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रीशन, सेमाइनल वेसिकल का सीक्रीशन और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड भी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कहते हैं। इन सब का सीक्रीशन सीमेन के अंदर होता है। अब हम स्टडी करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। तो बाहर वाली सतह जो होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है उसको ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, और अंदर उसके अंदर वाली को ट्यूनिका एल्बिग्यूनिया कहते हैं, और उसके सबसे अंदर वाली को बोलते हैं ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ट्यूनिका एल्बिग्यूनिया मिडल वाली है, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा सबसे अंदर वाली है, और ट्यूनिका वेजाइनलिस सबसे बाहर वाली लेयर है। और ये कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनमें 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या लोब प्रेजेंट। 250 लोब्स होते हैं इनमें, 250 लोब्स, और एक लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। स्पर्मेटोजोआ है, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया, एक को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। इसमें सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं मेल जर्म सेल्स को। एक को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, इनको लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को कहा जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं, मिडिल लेयर को ट्यूनिका एल्बिग्यूनिया बोलते हैं, अंदर वाली लेयर को ट्यूनिका वेस्कुलोसा बोलते हैं। सबसे इनर लेयर होती है। 250 लोब्स होते हैं, और एक लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं पर लोब में। ये सेमिनिफेरस, ये रेटी टेस्टिस है, यहाँ से आगे फर्दर कैरी करेंगे स्पर्म्स को, और यहाँ से एक लोब के बारे में बताया गया है। ये 1 लोब है, और इसके अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। तो 1 2 3 ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके अंदर स्पेस होता है,
और इस स्पेस में लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस, सर्टोली सेल प्रोवाइड्स हार्मोन, फर्स्ट इनहिबिन हार्मोन जो कि इनहिबिट करेगा, रोकता है एफएसएच को बनाने से। नरिशमेंट प्रोवाइड करती है सर्टोली सेल स्पर्म सेल को, इनको नर्व सेल्स भी कहा जाता है, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहा जाता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ब्लड टेस्ट बैरियर, सर्टोली सेल प्रोटेक्ट करती हैं स्पर्म को फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, इसलिए ब्लड टेस्टिस बैरियर भी प्रेजेंट होता है। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन इन इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन बढ़ाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल। लेडिक सेल्स प्रोवाइड प्रोड्यूस्ड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल लार्ज मेल एसेसरी ग्लैंड होती है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन सीमेन, जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सीमेन में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी अनपेड होती है, से भी सीक्रीशन निकलता है ग्लैंड का। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इससे भी सीक्रेशन निकलता है, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ये पेयर्ड होती है एंड सबसे छोटे होते हैं। सीक्रेशन, सीमेन इक्वल्स टू स्पर्म प्लस सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सीमेन का पीएच 7.7 एल्कलाइन इन नेचर होता है। फ्रक्टोज एक्ट्स एज एनर्जी सोर्स, कैल्शियम कंट्रीब्यूशन होता है। फ्रक्टोज में कंसीट्रेट आयंस होते हैं, जनरेट करते हैं एनर्जी, क्रैप्स साइकिल और प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन। ओलिगोस्पर्मिया, जब स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है 80 मिलियन, नॉर्मल स्पर्म काउंट 200 टू 300 मिलियन पर एजैकुलेशन, ये नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है। ओलिगोस्पर्मिया, जब स्पर्म काउंट गिर जाता है, कम हो जाता है, तो 80 मिलियन हो जाता है। और एजूस्पर्मिया, इसमें 10 मिलियन से 20 मिलियन पर एजैकुलेशन हो जाता है, मतलब ये ओलिगोस्पर्मिया से भी कम हो जाता है। एस्थीजोस्पर्मिया, स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीजेस। और टेट्राजोस्पर्मिया, स्पर्म स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड, मतलब स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, एक्रोसोम, गोल्जी मॉडिफाइड फर्टिलाइजिंग केमिकल, hyaluronidase, acrosin और कोरोना पेनिरेटिंग एंजाइम, दीज ऑल एंजाइम प्रेजेंट इन एक्रोसोम, ये सारी एंजाइम्स एक्रोसोम में प्रेजेंट होती है। गोल्जी मॉडिफाइड होता है। न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल n equals to 22 plus x and 22 plus y. नेक, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल 9 plus 0 अरेंजमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग फर्ट क्लीवेज। डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट 9 plus 0 अरेंजमेंट। ये जो बीच से टेल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज एक्सियल फिलामेंट। मिडिल पीस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, 20 to 25 स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। टेल वेब फ्लैश मूवमेंट शो करती है। और 60% ऑफ स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, 60% ऑफ स्पर्म का नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। और 60% का 40% में विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए स्पर्म की, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस पोस्ट प्यूबर्टी, ये 2n स्पर्मेटोगोनिया होती है, इसमें माइटोसिस हुई तो 2 बने, 2n ए एंड बी, इसमें ग्रोथ हुई तो ग्रोथ के बाद एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें 44 प्लस एक्स वाई, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस 1 में एन एन 2 में डिवाइड हो जाएंगे, 2n एन एन में डिवाइड हो जाएंगे, हाफ हाफ, तो 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई हो जाएंगे। इनमें फिर मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 के बाद एक्स के 2 सेल बनेंगे, वाई के भी 2 सेल बनेंगे, तो 4 एन का फॉर्मेशन होगा। फिर बाद में इनसे स्पर्म बनेगा, दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। द फीमेल
reproductive system. First is ovary, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवा, हार्मोन रिलीज करती है ओवरी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। रिमूवल ऑफ ओवरी ओफ्रेक्टोमी के बोलते हैं। सेकेंड पोर्शन इज दैट इज फिम्ब्रे। फिम्ब्रे ओवा एब्डोमिनल कैविटी से पिक करती है। पहले ओवरी से एग रिलीज होगा एब्डोमिनल कैविटी से फिम्ब्रे पिक करेगी infundibulum, then it goes to ampulla से फिर further isthmus में सेल्स डिवाइड होंगे then it goes to the यूट्रस के बाद यूट्रस में जाके इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन के बाद ग्रो करेगा, then cervix के थ्रू चाइल्ड की बर्थ हो जाएगी और then it goes to vagina and then finally out चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। तो फर्स्ट देन सेकेंड पार्ट इज फिम्ब्रे। ऑस्टिया ओवरी से एग रिलीज होगा, एग रिलीज एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी से फिम्ब्रे उसको पिक कर लेंगी और फिम्ब्रे पिक करने के बाद फेलोपियन ट्यूब में जाने के लिए ओपनिंग की रिक्वायरमेंट होगी ताकि ओवा आगे फर्दर ट्रैवल कर सके। उसको एक पाथ की एक ओपनिंग की ज़रूरत होगी, उस ओपनिंग को ऑस्ट्रिया कहेंगे। ऑस्ट्रिया के थ्रू वो फेलोपियन ट्यूब में फर्दर कैरी होगा और उस ओपनिंग को ऑस्ट्रिया कहते हैं। ऑस्टिया से इन्फेंडुलम में जाएगा, इन्फेंडुलम से एम्पुला में जाएगा। एम्पुला वाइडेस्ट पोर्शन होता है फेलोपियन ट्यूब का एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्पुला रीजन। एम्पुला से इस्थमस में जाएगा, इस्थमस में जाइगोट जाता है बिकॉज फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट आगे बढ़ेगा, सेल्स डिवाइड हो जाएंगे तो जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट ही इस्थमस में जाता है। इस्थमस के बाद सेल्स और डिवाइड होंगी, फिर वो यूट्रस में जाएगा। यूट्रस को वूम भी बोलते हैं, हिस्टेरा भी बोलते हैं और वूम को रिमूवल को हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। इम्प्लांटेशन इन यूट्रस हो जाएगा एंड प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, फिर ग्रो करेगा बेबी। ग्रो करने के बाद सर्विक्स के थ्रू फिर देन वेजाइना एंड देन चाइल्ड आउट हो जाएगा। वेजाइना के थ्रू चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। सर्विक्स में जाता है, बर्थ होना शुरू होता है तो पहले सर्विक्स में फिर वेजाइना में और फिर आउट हो जाता है बेबी। तो फर्स्ट हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे ओवरी के बारे में और पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे। तो ओवरी पेड होती है, मेम्ब्रेनस होती है, ट्यूनिका एल्बिग्यूनिया, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ओवरी को। सेकेंड इज जर्माइनल लेयर, जर्माइनल एपिथेलियम, लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स होती है। ओवरी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, cortex outer and medulla that is inner। ओवरी फॉलिकल्स बनाती है दैट इज ओवा रिलीज होता है उनसे, और इनर मेडुला में ब्लड कैपिलरी लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स होती है। सेकेंड इज फेलोपियन ट्यूब दैट इज ओविडक्ट सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है। अटैचमेंट दैट इज मीजोसैल्पनिक्स पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज दैट इज इन्फंडिबुलम, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिम्ब्रे पिक्स ओवा फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, ओवा एंटर्स इनटू द इन्फंडिबुलम, ओपनिंग को ऑस्टिया कहते हैं। सेकेंड रीजन इज एम्प्यूला, वाइडेस्ट एंड लार्जेस्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। थर्ड पार्ट इज इस्थमस, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। यूट्रस वूम या हिस्टेरा भी बोलते हैं। रिमूवल ऑफ यूट्रस हिस्टेरेक्टोमी। पार्ट्स पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये यूट्रस के पार्ट्स हैं। बाहर वाली लेयर आउटर मोस्ट एरुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है प्लस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। सेकेंड मायोमेट्रियम, ये मिडिल लेयर है, स्मूथ सर्कुलर, हेल्प इन पार्च्यूरेशन। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही शेड करती है और बाद में यही बन जाती है। इनर मोस्ट लेयर है, ग्लैंडुलर लेयर है, नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो प्रोवाइड करती है और ये
दो लेयर होती है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस। Stratum functionalis, stratum basalis. It is functional and provide nourishment, give rise to stratum functionalis every month. ये शेड हो जाती है तो ये बना देती है stratum functionalis, शेड हो जाती है तो basalis functionalis फिर से बन जाती है every month. The female reproductive system consists of a pair of ovaries. अब हम रीड करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू। हमने सारे नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे जो कि मैंने आपको नोट्स से पढ़ा दिया है, और ये नोट्स जो मैं पढ़ा रही हूँ इसे अगर आप लिखेंगे एक कॉपी में और अच्छी तरीके से लर्न करेंगे और एनसीईआरटी से टैली करेंगे तो 100% श्योर आपको अलग से नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी होंगे स्टडी करने के लिए। The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, and the external genitalia located in the pelvic region. These parts of the system, along with a pair of mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth, and child care. Ovaries are the primary फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं फीमेल्स की, क्योंकि ओवरी से ही ओवा रिलीज होता है और जहाँ गैमीट्स बनते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट्स ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स ovarian hormones. The ovaries are located one of each of the lower abdomen, मतलब एक साइड, ईच साइड मतलब दोनों तरफ एक एक ओवरी लोकेटेड होती है। ईच ओवरी इज अबाउट 2-4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। तो ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है एंड यूट्रस बाय लिगामेंट मीजो। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। ईच ओवरी कवर्ड होती है बाय अ थिन एपिथेलियम which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, the peripheral cortex and the inner medulla. ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब होता है। यूट्रस वेजाइना constitute the female accessory duct. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extend from the periphery of each ovary of the uterus. The part closer to the ovary is funnel shaped, that is infundibulum. ये funnel shape का है, इसको infundibulum बोला गया है। ये ओवरी के पास वाला पोर्शन है। The edges of the infundibulum possesses finger-like projection. ये finger-like projection है, इसको फिम्ब्रे कहा जाता है, which help in collection of ovum from the ovulation. यही का ये ओव्यूलेशन होगा तो एग रिलीज होगा तो सबसे पहले एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा। एब्डोमिनल कैविटी से ये फिम्ब्रे पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद इसको फर्दर ओवा को अंदर जाने के लिए पाथ चाहिए, तो यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उस ओपनिंग को ऑस्टिया बोला जाता है। ऑस्टिया के थ्रू फिर इनफंडिबुलम में जाएगा, फिर एम्पुला में, फिर स्टेमस में, देन यूट्रस एंड यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाएगा, फिर सर्विक्स, फिर सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना के थ्रू उसकी बर्थ हो जाएगी बेबी की, which help in collection of ovum from the ovulation. Infundibulum leads to a wider, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ये यूट्राइन फंडस है, यूट्राइन कैविटी है, ये एंडोमेट्रियम की लेयर है सबसे अंदर वाली, ये बीच वाली लेयर मायोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर है, ये ओवरी है, ये फिम्ब्रे है। एस्थमस वाला एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है ओवा का, ओवम और स्पर्म यहाँ मीट करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद इस्थमस में जाइगोट पहुंचता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिवाइड हो जाएगा, सेल डिवाइड के बाद जाइगोट पहुंचेगा और फर्दर और डिवाइड होंगे, सेल्स और डिवाइड होंगे और फिर अंदर यूट्रस में यहाँ पर सेल इम्प्लांटेशन हो जाएगा और इन तीनों को मिला के फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में जब कैरी करता है ओवा, ऑस्ट्रिया के थ्रू निकलेगा तो इनफंडिबुलम में जाएगा, इनफंडिबुलम के बाद ही फर्दर आगे जाएगा। फिर ये सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कैनाल है, ये वजाइना है।
parts of the oviduct is ampulla. The last part of the oviduct, that is isthmus, has a narrow lumen and it joins the uterus. Uterus is single uterus होता है and it is also called womb. इसको womb भी बोलते हैं, hystera भी बोलते हैं. और removal of womb, that is known as hysterectomy. The shape of the uterus is like a inverted pear. It is supported by ligament attached to the pelvic region. Pelvic, the cervix is called pelvic, attached to the pelvic wall. The uterus opens into vagina through a narrow cervix. The cavity of cervix is called cervical canal, which along with vagina from the birth canal. The wall of the uterus has three layers of tissues: perimetrium, external thin membranous, middle layer smooth muscle से myometrium, inner glandular layer that is endometrium जो कि हर month shed करती है, that lines the uterine cavity. Endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, which the myometrium exhibit strong contraction during delivery of the baby. और यहीं पर यूट्रस में मायोमेट्रियम वाली लेयर में ही इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का और इसी में ही कॉन्ट्रैक्शन होता है और यही वाली जो लेयर होती है जो हर मंथ सेट करती है. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. Mons pubis is a cushion of flatty tissue covered by thin and pubic hair. हाइमेन एक पतली सी लेयर होती है जो कि फिजिकल वर्क करने से, साइकिलिंग करने से, स्पोर्ट्स में भाग लेने से जो कि पतली सी लेयर होती है वजाना में जो कि टूट जाती है. इट्स नॉट एन इंटीग्रिटी ऑफ साइन दैट प्योरिटी और the labia majora are fleshy folds of tissues which extend down from the mons pubis and surrounded the vagina opening. The labia minora are paired folds of tissues under the labia majora. The opening of the vagina is often covered partially by membrane called hymen. जो ओपनिंग होती है वेजाना की इज कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन. यही मैंने आपको बताया, तो पार्शियली लेयर से कवर्ड होती है. कोई गर्ल्स का प्योरिटी का साइन नहीं होता है दैट हाइमेन्स ब्रेक्स इट्स डजंट मीन दैट दैट गर्ल इज नॉट प्योर और एनीथिंग. इट मीन्स कि स्पोर्ट्स में भाग लेने से या फिर फिजिकल वर्क करने से, साइकिलिंग से, स्पोर्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स लेते हैं और लेना भी चाहिए. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper function of the two labia minora above the urethral opening. The hymen is often torn during the first coitus intercourse. A functional mammary gland is characteristic of all mammals. The mammary glands are paired structures, breast that contains glandular tissues and variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. ये मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है. अ डायग्रामेटिक सेशन ऑफ व्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड. अब हम इस मेमरी ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे. A functional mammary gland is characteristics of all female mammals. जितनी भी फीमेल मैमल्स होती है इन सब में मेमरी ग्लैंड पाई जाती है. मेमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है इनमें.
The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secretes milk. इन्हीं में milk produce होता है alveoli में, which is stored in the cavity lumens. Lumen में store हो जाता है of alveoli. The alveoli opens into mammary tubules. The tubules of each lobe join to a mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla, which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. Gametogenesis, primary sex organ. Testes in the male and ovaries in the females produced gametes, और जहाँ gametes का formation होता है उसी को primary sex organ बोलते हैं. Testes males में बनती है, ovary females में बनती है और इन्हीं को gametes बोलते हैं. That is sperm and ovum in the female, sperm in the male. टेस्टिस के थ्रू स्पर्म बनते हैं, ओवरीज के थ्रू ओवम रिलीज होता है रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस. मेल जर्म सेल्स जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं स्पर्म को प्रोड्यूस करता है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं. दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है. द स्पर्मेटोगोनिया सिंगल स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं और प्लूरल बहुत सारे स्पर्म उनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, बहुत सारे को, और सिंगल को स्पर्मेटोगोनियम. प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस tubule multiply by mitotic divisions and increase in number. Each spermatogonium is diploid. एक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड होता है and contains 46 क्रोमोसोम, मतलब 23 pairs. Some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis. A primary spermatocytes completes the first meiotic division reduction leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. The spermatids are transformed into spermatozoa, that is a sperm, by the process called spermiogenesis. स्पर्म के बनने को प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं और स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्म स्पर्मेटोजोआ में इसको स्पर्म. After spermiogenesis, sperms had become embedded in the Sertoli cell and finally releases from the seminiferous tubule by the process called spermiation. Spermatogenesis starts at the age of puberty during significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH. This is why you recall a hypothalamic hormone, the increased level of GnRH then acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of 2-gonadotropin. 2-gonadotropin, luteinizing hormone LH, and follicle stimulating hormone, that is FSH. LH act at the Leydig cells and stimulate synthesis and secretion of androgen. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. FSH acts on the Sertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. Let us examine the structure of sperm. This is the structure of sperm. Acrosome containing chromosomal material, that is acrosome. The nucleus containing chromosomal material, that is ochrosome. ये ऊपर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मिडिल पीस है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एनर्जी फॉर स्विमिंग. ये टेल है और ये जो अंदर से ये जो स्ट्रक्चर लाइन गई है ब्लैक कलर की, दैट इज नोन एज एक्सियल फिलामेंट विच हैड
studied in the notes also, और हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को भी उसमें स्टडी किया था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बाद में स्पर्म्स कैसे बने, ये हमने नोट्स में पढ़ा था। ये हम बुक से रीड कर रहे हैं NCERT, through NCERT, and this is the head portion, structure of sperm. Now, the structure of a sperm is a microsporic structure composed of a head, neck, and middle piece and tail. Plasma membrane envelops the whole body. Sperm. The sperm head contains a elongated haploid nucleus, anterior portion of which is covered by a cap-like structure that is acrosome. The acrosome is filled with enzymes that help fertilization of the ovum. The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail. Mitochondria tail को movement में help करता है, ये power house of the cell होता है. Produces energy for the movement of tail. The facilitated sperm motility essential for fertilization. The human male ejaculates about 200 to 300 million sperm during a coitus, of which normal fertility. At least 60% of sperm must have normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous motility. मतलब 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और 60% में से ही 40% का विगरस मोटिलिटी होना चाहिए. स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. स्पर्म्स रिलीज होते हैं कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने पढ़ा था कि एक लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं. तो एक स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टुली सेल्स प्रेजेंट होते हैं. Are transported by the accessory duct. Secretion of epididymis, vasa deferens, and seminal vesicles and prostrate are essential for maturation and motility of sperm. Seminal plasma, along with the sperm, constitute the semen. The function of male sex accessory duct and glands are maintained by the testicular hormone called androgen, और एंड्रोजन हार्मोन LH से रिलीज होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, मेल हार्मोन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमीट्स इज oogenesis, और फीमेल की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं और मेल की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. यहाँ से अब फीमेल की प्रोसेस शुरू होगी, दैट इज oogenesis, विच इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होती है oogenesis, क्योंकि इसमें एग बेबी जब बन रही होती है, फीमेल बेबी वूम में, तभी oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis डिफरेंट होती है. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gametes, mother cells, oogonia, are formed with each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. बर्थ के बाद कोई भी उगोनिया नहीं बनेगा और ना ही कोई उगोनिया ऐड होगा आफ्टर बर्थ. दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में ही अरेस्टेड हो जाता है. प्रोफेज 1 ऑफ द मेयोटिक डिवीजन एंड गेट्स टेम्परली अरेस्टेड एट दैट स्टेज, और इसी स्टेज में अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में. कॉल्ड प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है. मेयोटिक डिवीजन वी विल स्टडी थ्रू नोट्स. Let's read now. We will read with the NCERT, फिर बाद में हम नोट्स के थ्रू इसको स्टडी करेंगे. अभी हम NCERT के थ्रू इसको रीड कर रहे हैं इस टॉपिक को, फिर हम नोट्स के थ्रू इस टॉपिक को समझेंगे कि oogenesis प्रोसेस में oogonia कैसे बनता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कैसे फॉर्मेशन होती है.
Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called the primary follicles. A large number of these follicles generating during the phase from birth to puberty. At puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. The primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cells and a new theca called secondary follicles. The secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle, which is characterized by a fluid-filled cavity antrum. The theca layer is organized into an inner theca interna and outer theca externa. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte will within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. It is unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and tiny first polar body. Secondary oocyte retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. Does the primary polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes into the mature follicles or Graafian follicles. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. The Graafian follicles now ruptures to release the secondary oocyte. ओवम secondary oocyte होता है और जब तक ओवम का फर्टिलाइजेशन से नहीं होता जब तक उसको सेकेंडरी oocyte ही कहते हैं. स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होता ओवम का जब तक वो सेकेंडरी oocyte ही कहलाता है. From the ovary by the process ovulation. डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी. ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ब्लड वेसल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, टर्जरी फॉलिकल, सोइंग एंट्रम, ग्राफियन फॉलिकल, ओवम, ये कॉर्पस ल्यूटियम. ये oogenesis की प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है. ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये oogenesis है. स्पर्मेटोजेनेसिस हमने नोट्स के थ्रू पढ़ा था. ये स्पर्मेटोगोनिया है. माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, 2 बने, 2 से 4 बने. फिर यहाँ पे इससे एक स्पर्मेटोगोनिया से ये डिवाइड हुआ और ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से ये 2 बने और इन सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई, ये स्पर्मेटिड्स बने. स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएशन के बाद ये स्पर्मेटोजोआ बन गए, दैट इज स्पर्म. यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर 46 था और यहाँ आते आते हाफ हो जाता है, एन 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 एन, ये 4 बन जाते हैं, हाफ हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम. ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस थी. ये 2n स्पर्मेटोगोनिया था. यहाँ 2n स्पर्मेटोगोनिया था. फिर ये 2 सेल्स में डिवाइड हुए थे, 2n 2n. फिर इस एक को ग्रोथ हुई फर्दर और इस एक को हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या था, 44 प्लस एक्स एंड वाई. फिर क्या हुआ, मियोसिस 1. यहाँ मियोसिस 1 हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. और ये कितने में डिवाइड हो गए, 2 में डिवाइड हो गए, 1 and 2. इसको और ये किस में डिवाइड हो गए, 1 and 2, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई. अब हुआ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए. अब इनमें डिवीजन हुआ तो ये डिवाइड होके कितने बन गए, 4. ये 4 बन गए, एन एन एन, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई. ये बन गए 4, 1 2 3 4 एन एन बन गए. इसको क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स कहेंगे. स्पर्मेटिड्स में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ
और हमें डिफरेंशिएशन के बाद स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटेड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, और डिफरेंशिएशन के बाद स्पर्मेटेड्स बन गए, उस पर से फाइनली स्पर्म बन गए। ये प्रोसेस थी, ये हमने नोट्स के थ्रू स्टडी किया था इस प्रोसेस को, और ये एनसीईआरटी का है। ये डायग्राम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है। ये स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटिड्स है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, और सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और एक को स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। दैट इज द डायग्राम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हमने पढ़ा था कि एक लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पड़ी होती हैं, और 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल्स होते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। So if you like this video, so please like and subscribe, and please comment on this video if you like it. So please like this video. Thank you everyone. अब मैं आगे आपको oogenesis के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि हमने एनसीईआरटी से रीड किया है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का पढ़ाऊंगी टॉपिक आगे further in this chapter. So please like and subscribe the channel. Thank you everyone.